Hello everyone, welcome to today's class. My name is Kushbu and in this class we are going to do the daily current affairs MCQs. So in this class we are going to do 10 different type of questions. चलिए let's get started with that, but before that हम अपने पराक्रम बैच के बारे में पहले आपको बता दें that पराक्रम बैच has started from 24th of July, so you can join any of these MA, BA, diploma plus UPSC or only UPSC preparation. You can do any of these. Philosophy optional is going to start from September first week. Essay enhancement program already going on. Score enrichment program of philosophy, you can join this as well. NCERT program is also going on. Apart from that, कहाँ से जो है आपको information मिलेगा? You can call on these numbers or you can definitely go on tathastuics.com, इस पे जा सकते हो, या फिर you can call on these numbers, या फिर ये जो हमारा एड्रेस है यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट दी कंप्लीट डिटेल. चलो, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The question is, consider the following statements regarding World Economic Forum, that is WEF. The very first one is the World Economic Forum is an organization situated in Geneva, Switzerland with affiliations to the United Nations. Second is renowned for its yearly gathering in Davos, the World Economic Forum is widely recognized for this summit. Third statement is the forum aims to showcase entrepreneurship for the collective benefit of the global community. The fourth one is much of the forum's funding is provided by its partner corporations. How many of the above statements are correct over here? विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, विश्व आर्थिक मंच संयुक्त राष्ट्र से संबद्धता के साथ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित एक संगठन है. दूसरा है, दावोस में अपनी वार्षिक सभा के लिए प्रसिद्ध वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है. तीसरा है, फोरम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के सामूहिक लाभ के लिए उद्यमशीलता का प्रदर्शन करना है. चौथा है, फोरम की अधिकांश फंडिंग उसके साझेदार निगमों द्वारा प्रदान की जाती है. सो इसमें से कौन से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है? तो यहाँ पर आंसर है सी. 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट है. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ पर है, विच वॉज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब. इनके द्वारा जो है वो किया गया था. इसकी जो एनुअल समिट है कहाँ पे होती है? स्विट्जरलैंड के डावोस में होती है. ओके. Why the World Economic Forum Summit is held in Davos and other interesting facts about the event explained part of the Indian Express. Second question is, consider the following statements. The very first statement is the main goal is to promote the engagement of individuals in local level governance. Second statement is the bill aims to remove the criminal status from certain provisions. Third is, through these amendments, the bill intends to lessen the legal complications associated with the existing provisions. The fourth is, the bill suggests incorporating the practice of compounding offenses. So, how many of these statements are correct? जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन कहता है, मुख्य लक्ष्य स्थानीय स्तर के शासन में व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है. दूसरा है, विधेयक का उद्देश्य कुछ प्रावधानों से आपराधिक स्थिति को हटाना है. तीसरा है, इन संशोधनों के माध्यम से विधेयक का इरादा मौजूदा प्रावधानों से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को कम करना है. चौथा है, विधेयक अपराधों को कम करने की प्रथा को शामिल करने का सुझाव देता है. इसमें से कितने कथन जो हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं? सो द आंसर इज ऑप्शन सी. 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं. अभी ये जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2023
ये अभी मानसून सेशन चल रहा है उसमें पेश किया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये इसका काम है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे? डीक्रिमिनलाइज करेंगे 183 प्रोविजंस, 42 विद इन 42 सेंट्रल एक्ट्स एंड 19 अंडर 19 मिनिस्ट्रीज एंड दैट ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। बिकॉज recently only I saw one message, one not message but one news ki there is a person in Bangalore. He has been running like anything. He has been applying everywhere in order to set up his business, but इतने सारे laws and procedures हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि he said कि finally I feel that now it's the time to move out and go there and settle down over there in the US. वहाँ पे तो जाकर के जो है सेटल कर देना, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू डूइंग ओवर हियर इन इंडिया। इंडिया में करे उससे बेटर है कि वहाँ पे कर दिया जाए। Next question is, consider the following statements about Global Education Monitoring Report 2023. Global Education Monitoring Report 2023. The very first statement is, UNICEF is the organization responsible for its publication. Second is, legislation is fewer than 10% of countries ensures guaranteed data privacy in the field of education. Third is, the report released this year is titled Technology in Education, a Tool on Whose Terms. Fourth is, education for all is one of the goals mentioned in SDG 5. How many of these statements are correct over here? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दे रहा है कि यूनिसेफ इसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार संगठन है। दूसरा है 10% से कम देशों में कानून शिक्षा के क्षेत्र में डेटा गोपनीयता की गारंटी सुनिश्चित करता है। तीसरा है, इस वर्ष जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा में प्रौद्योगिकी किसकी शर्तों पर एक उपकरण। चौथा है, सभी के लिए शिक्षा SDG 5 में उल्लिखित लक्ष्यों में से एक है। तो यू हैव टू फाइंड, आपको बताना है कि इसमें से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं, कथन जो हैं वो करेक्ट हैं। सो द आंसर ओवर हियर इज ए, ओनली वन स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? दैट इज द सेकेंड वन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओवर हियर। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है जो कि ईयरली पब्लिकेशन है यहाँ पर, एंड इसको यूनेस्को पब्लिश करती है, दैट टू इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो है इसको रिलीज करती है, विद अ वाइटल फंक्शन ऑफ ट्रैकिंग एडवांसमेंट्स इन एजुकेशन कंसर्निंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दे आर कीपिंग दिस थिंग इन माइंड। Statement 3 is also incorrect over here. The issue of data privacy in the education continues to be a worrisome टॉपिक ओवर हियर। हमने ये जो डीएनए में बहुत ही डिटेल में कवर किया था, सेम चीज वही है कि डेटा प्रिवेसी किस तरीके से जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। यहीं पे जो है पेरेंटिंग की जगह पे रेंटिंग जो है, लोग पेरेंटिंग को बोलने लग रहे थे, शेयर रेंटिंग। सो द पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर द चिल्ड्रंस इमेजेस एंड ऑल। उनकी जो फोटोज हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो शेयर करना बहुत पसंद करते हैं, बट दे डोंट नो उसके कितने इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उनके लिए, राइट, एंड ऑब्वियसली फॉर देम ऑल्सो एज अ पेरेंट। ओके, तो ये डेटा प्रिवेसी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, बट डेटा ऑल्सो यू आर शेयरिंग। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज लिटिल वरीसम ओवर हियर, बिकॉज लाइक रफली अराउंड 16% कंट्रीज हैं जहां पर की लीगल प्रोविजंस हैं इस चीज को लेकर के, बट नॉट एवरीवेयर, एंड इंडिया में तो अभी ये चीज चल ही रही है। Statement 4 is also incorrect. The report highlights the financial disparity in attaining the targets of SDG 4, not that of the 5. So that question is wrong. That statement is wrong. Now the question number 4, it is related to AC, this A-Cross scheme.
The very first statement is the primary objective of this comprehensive scheme is to enhance agricultural supply chains. Second is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is responsible for the implementation of the scheme. You have to find out the incorrect statement over here. ए क्रॉस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, इस व्यापक योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाना है. दूसरा है, योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है. आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है. तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है. ए क्रॉस क्या है? इट स्टैंड्स फॉर द एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज and it serves as a kind of support to the weather and climate forecasting. ये चीज भी हमने कवर किया था. क्लाइमेट वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग से ये चीज जो है वो रिलेटेड है अक्रॉस. स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे दिस पर्टिकुलर स्कीम इट एक्चुअली पुट इनटू एक्शन 4 इंस्टीट्यूशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आती हैं. एंड कौन कौन से हैं वो? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज द NCMRWF, दैट इज द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर forecasting. Then IITM, that is Indian Institute of Tropical Meteorology, and INCOIS, that is Indian National Center for Ocean Information Services. तो ये सभी जो है एक साथ मिलकर के काम करते हैं. Next question is, to which river does the Hindon River serve as a tributary? हिंडन रिवर को लेकर के अभी काफी ज्यादा न्यूज है क्योंकि नोएडा वाला जो पोर्शन है एंड अलॉट मेनी पार्ट ओवर हियर इन नियर बाय दिस दिल्ली ओनली, हिंडन रिवर की वजह से बाढ़ आ रखी है, फ्लड हो रखा है. ठीक है, तो हिंडन रिवर किस नदी की जो है वो ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है? गैंजेस, यमुना, नर्मदा, ताप्ती. गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती. सो क्या है आंसर? सो दैट इज द वेरी इजी वन, दैट इज यमुना. ओके, तो हिंडन रिवर जो है उसका काफी ज्यादा उसमें वाटर हो गया है तो उसकी वजह से फ्लड जैसा जो है वहां, फ्लड जैसा क्या, फ्लड सिचुएशन एक्चुअली हो ही गई है. क्वेश्चन नंबर 6, इट इज रिलेटेड टू द ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है. पहला स्टेटमेंट इज दैट दिस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पावर्ड बाय ramjet engine. Second is the missile operates based on the fire and forget principle, ensuring precise targeting. Third is it has been adopted by all 3 branches of India's defense forces. So which of the above are correct over here? ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है कि यह रामजेट इंजन द्वारा संचालित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. दूसरा है मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है जिससे सटीक निशाना लगाना सुनिश्चित हो जाता है. तीसरा है इसे भारत की रक्षा बलों की तीनों शाखाओं द्वारा अपनाया गया है. इसमें से कितने जो हैं वो स्टेटमेंट्स सही है? सो द आंसर इज डी, सभी के द्वारा. ठीक है, मतलब सभी के द्वारा कह रही हूँ, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है. साइंटिस्ट टोल्ड पाक कॉन्टैक्ट विल शो ब्रह्मोस रिपोर्ट इन पर्सन. ATS प्रोब में जो है क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the National Investigation Agency, that is NIA, consider the following statements. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सेकंड इज इट possesses the authority to probe and prosecute offences committed both within and outside India. Third is the cases investigated by NIA are handled by special NIA courts whose judges are appointed by the central government based on recommendations from the Chief Justice of the Supreme Court. भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, इसके पास भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह किए गए अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के का अधिकार है। तीसरा है, एनआईए द्वारा जांच किए गए मामलों को विशेष एनआईए अदालतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनके न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कितने जो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा यहाँ पर जो है वो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो एनआईए में जो ट्रायल्स होते हैं दैट इज एडजुडिकेटेड बाय द स्पेशल कोर्ट्स एंड द जजेस फॉर दीज कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये जो जजेस होते हैं अपॉइंट, दिस इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद ज्यूरिसडिक्शन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। जो भी पर्टिकुलर रीजन में वो क्राइम का ट्रायल चल रहा है तो वहां पे जो जिस भी हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, तो दैट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विल बी डिसाइडिंग ऑन दिस। सो भीमा कोरेगांव केस, सुप्रीम कोर्ट बेल फॉर गोंसाल्वेज Ferreira, charges are serious, can't be only reason to deny relief over here. Now the last question of the day is, consider the following statements about the floodplains. Floodplain से related है। पहला है, a floodplain also known as a floodplain, flood मतलब इसमें separate, refers to a land area situated beside a stream or river extending from the channel's banks to the surrounding valley walls. Second is, floodplains when flooded serve as natural filters, eliminating surplus sediment and nutrients which have the potential to deteriorate water quality and escalate treatment expenses also. You have to find out which of the above statements are correct. बाढ़ के मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए। पहला है, बाढ़ का मैदान एक जलधारा या नदी के किनारे स्थित भूमि क्षेत्र को संदर्भित करता है जो चैनल के किनारों से लेकर के आपस की घाटी की दीवारों तक फैला हुआ है। दूसरा है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदान प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करते हैं, अतिरिक्त तलछट और पोषक तत्वों को खत्म करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब होने और उपचार खर्च बढ़ने की संभावना होती है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है? कथन कौन सा सही है भाई? सी, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, फ्लड प्लेन जो है वो आपको ऐसे भी लिखा रहता है, विथ स्पेस भी लिखा रहता है, बोथ आर द करेक्ट थिंग ओनली। इज अ लैंड एरिया नेबरिंग अ स्ट्रीम और रिवर। देखिए, दिस इज द माउंटेन, दिस इज द रिवर विच इज फ्लोइंग इन द वैली। ये यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर एरिया तक, दिस कंप्लीट एरिया इज द, ये क्या हो गया? फ्लड प्लेन, क्योंकि जब भी फ्लड आएगा तो वो पूरे पर्टिकुलर एरिया में जो है ये फिलअप कर दे रहा है। रेन, ये रिवर जो है वो फिल कर दे रही है। नॉर्मली तो रिवर इतने एरिया में ही फ्लो कर रही है, लेकिन जब रेन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो जहाँ तक इसके वाटर फैल जा रहे हैं दैट इज़ द फ्लड रीजन ओनली। ठीक है, वो सारा का सारा क्या है? फ्लड प्लेन है। इट अंडरगोज फ्लडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द हाई डिस्चार्ज। जब बहुत ज़्यादा जो है रेन होता है तो ये पूरा वाटर जो है वो फैल जाता है उतने एरिया में। ठीक है, नेचुरल फिल्टर्स, जब फ्लड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो आकर के वहाँ पे रहते हैं, तो उसका जो एक फिल्टरिंग वाला जो काम रहता है वो नहीं हो पाता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज ओवर हियर। With reference to the Forest Conservation Amendment Bill 2023, consider the following statements. The very first question is, according to the bill, if the state government intends to allocate forest land to private entity, it must obtain prior approval from the central government. Second is, the bill expands this requirement to encompass all entities and it grants the central government the authority to determine the terms and conditions for such assignments. Which of these
statements are correct. वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विधेयक के अनुसार यदि राज्य सरकार की किसी निजी संस्था को वन भूमि आवंटित करने का इरादा रखती है तो उसे केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। दूसरा है, विधेयक सभी संस्थानों को शामिल करने के लिए इस आवश्यकता का विस्तार करता है और यह केंद्र सरकार को ऐसे कार्यों के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसमें से कौन से कोड जो हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? दैट इज सी 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे करेक्ट है। लोकसभा पासेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जिसको लेकर के बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म भी है एंड बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसमें। दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन आवर क्लास अर्लियर ऑल्सो इन द DNA पोर्शन। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग, राइट? चलो, so see you in the next class. Bye bye, take care and have a great time. Good night.